So guys, yesterday what we saw, different time frame. Okay, again if I go on the chart over here, अगर आप लोग देखोगे, if you see on top there are various different time frames. Okay, monthly, weekly, daily, 1 hour, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Okay, so every time frame has its own significance. But while doing analysis, guys, always focus on big data. Okay, not on small data. Always focus on big data, because big data will give you clear picture where exactly there is a supply, where exactly there is a demand. मैंने क्या कहा अभी, चार्ट के ऊपर हमेशा हम लोग बड़े डेटा को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे। बड़े डेटा से आप छोटे डेटा पे जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। You can go from big data to small data. I'm okay with that. But you should never go from small to big. Everyone, you should never go from small to big. सबको समझ में आ गया ये वाला part, everyone? Kindly please type one in the chat box if this part is clear to all of you. Whatever I said right now, everyone. I'm just writing it on the notepad also. Okay. While trading and investing, whenever you do analysis, it should be on big to small data. Everyone, big to small data. Everyone, I hope you understood this point. Now understand this. For example, you will do your analysis on 1 day chart. On 1 day chart. That means you are drawing support and resistance. आप एक दिन के चार्ट पे बना रहे हो, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट आप जो भी अपना एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ट्रेड्स को डिप्लॉय कर रहे हो, जो आपके ट्रेड्स रहेंगे, वो आप कौन से टाइम फ्रेम पे लोगे? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके लोगे। समझ में आ गया अभी आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? आई होप ऑल ऑफ यू गाइस गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर राइट नाउ। सो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, if you are doing it for stocks, it is known as a swing trading. Everyone, it is known as a swing trading, wherein you planned, you did your analysis on 1 day time frame. Everyone, you did your analysis on 1 day time frame, but when the time came for execution, you did execution on 1 hour time frame. Let's focus on that now. Let's look at the example properly. Okay, I'll select one random stock from this list. Everyone, can you guys tell me one single stock from this list? You can type in the chat box, guys. जो स्टॉक का आप नाम लोगे वही स्टॉक में सिलेक्ट करूंगा। आईटीसी, ओके परफेक्ट। पहले आईटीसी ले लेता हूं मैं। Okay, so this is my ITC stock, guys. Okay, now look at here. On ITC stock, I am on daily time frame. Everyone, on ITC stock, I am on daily time frame. Look on top. Everyone, I am on daily time frame. The D is in blue color. Okay, now look here. Yesterday, what we learned about support and resistance. कल हमने क्या सीखा था? ऐसा एरिया जहां से प्राइस ऊपर जा रहा था लेकिन नीचे आ गया, ऐसा एरिया जहां से प्राइस नीचे जा रहा था लेकिन ऊपर चला गया। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। वी आर टॉकिंग अबाउट एरियाज वेयर प्राइस वाज गोइंग अप and it experienced the rejection and price came down. We are talking about the area when price was coming down, it took support and price went up. दोनों ही साइड में रिजेक्शन मिला। नीचे की तरफ रिजेक्शन मिला मतलब सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिला मतलब रेजिस्टेंस। So now we'll try to mark that areas. Now see over here, if I'm marking that area, this is the first my area where exactly price has taken multiple rejection. You can see that, right everyone?
हाँ guys, if you see, we are talking about how many days? We are talking about candles from 22nd September. 22nd September. Look at bottom. नीचे dates आपको दिख रहा है ना guys? Everyone. 22nd, 23, 24, 25, 26, 27, 28 market was closed. 29, 30, 1st October. Second market was closed due to Dussehra. And this is 3rd October. Everyone, समझ में आ रहा है सबको? All of you are able to understand this? All of you? Now look here. यहां पे मैंने क्या मार्क किया है? यहां पे मैंने मार्क किया है अपना रेजिस्टेंस. अब यहां पे हम लोग मार्क करेंगे अपना सपोर्ट. Here I am marking my support area. See guys, this is the area where market has taken multiple times support. यहाँ पे. Okay, ये मेरा हो गया एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे. I did my analysis on bigger time frame. Now I am coming on 1 hour time frame. See, I am on 1 hour time frame. Everyone, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग प्रॉपर ऊपर. ये देखो, ये आपका प्रॉपर एकदम जोन बन गया अभी यहाँ पे. अभी फिलहाल ये स्टॉक साइडवेज है गाइस. राइट नाउ द स्टॉक इज इन साइडवेज. नाइदर इट्स अप, नाइदर इट्स डाउन. एवरीवन, ना तो प्राइस ऊपर है, ना तो प्राइस नीचे है अभी. एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यू गाइस वांट मी टू रिपीट दिस वन मोर टाइम? एवरीवन, क्या फिर से रिपीट करूं मैं ये वाला एक्सरसाइज क्विकली? एक बार 1 टाइप कर दो चैट में, चैट बॉक्स में जल्दी से. इफ यू गाइस वांट मी टू रिपीट द सेम एक्सरसाइज अगेन क्विकली, ऑल ऑफ यू. ओके, परफेक्ट. फर्स्टली व्हाट आई डिड गाइस, पहले मैंने क्या किया? I did my zone marking over here on daily time frame. On daily time frame, resistance and support. After that, now I came to 1 hour time frame. Now in 1 hour time frame, if I'm looking, my price is at sideways right now. It's not going up or it's not going down. So technically, if you ask me, मेहुल सर क्या है ये? इसमें अभी कुछ भी नहीं करना है अपने को. एंट्री वेंट्री कुछ नहीं करना है. डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है. This stock is directionless right now. If you are planning your swing tradings over here, avoid it. नहीं कर रहा है अपने को ये स्टॉक में काम. क्यों? ना तो स्टॉक ऊपर है, ना तो स्टॉक नीचे है. If you want to plan your entry, how will you plan the entry? First, I will show the dummy diagram over here. See, right now your stock condition is like this. Right now your stock condition is like this, up, down, and right now stock is here like this. Right everyone? ये आपके स्टॉक का कंडीशन है अभी. हमें कैसा कंडीशन चाहिए एंट्री करने के लिए? हमें कैसा कंडीशन चाहिए? हमें कंडीशन ऐसा चाहिए, या तो प्राइस यहां से जाए, यहां पे आ जाए फिर से, और यहां पे ये एरिया पे, मतलब सपोर्ट के पास ही मैं ग्रीन कैंडल देखूंगा, वॉल्यूम्स देखूंगा, तभी मैं ट्रेड प्लान करूंगा. ओके, या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे लिए ट्रेड लेने के लिए? दूसरा ऑप्शन ये है, प्राइस ऐसा ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, यहां से ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस को रिटेस्ट करने दो गाइस. यहां पे जब प्राइस फिर से ऊपर जाने को स्टार्ट करेगा ना, तब एंट्री लो. अभी ये थियरी समझो, ठीक है? अब ये थियरी समझो आप लोग. यहाँ पे दिस इज माय सपोर्ट, दिस इज माय रेजिस्टेंस, दिस इज माय सपोर्ट. दैट मीन्स green candle formed that support. Everyone, green candle formed that support. You waited for the confirmation and after then you planned your entry. Green candle support पे बना, आपने वहां पे confirmation के लिए wait किया और उसके बाद में आपने अपने trades को plan किया. Now look at the third diagram. ये है मेरा support, ये है मेरा resistance, ये है मेरा support, और यहाँ पे ये resistance टूट गया, ये breakout हो गया, प्राइस ऊपर चला गया. अब यहाँ पे क्या हुआ? नया रेजिस्टेंस बना है ऊपर मेरा. अगर आप देखोगे ना, प्राइस ने नया हाई बनाया. कल याद है आप लोगों को मैंने क्या बोला था? लड़का घर से बाहर गया, बॉल को उसने ऊपर से उछाला, मतलब सीलिंग नहीं था वहां पे, प्राइस इस बार और ऊपर गया जैसे बॉल ऊपर गई थी. ठीक है, तो अब क्या हुआ? बॉल ऊपर गई, फिर से नीचे आई, बॉल ने क्या किया? यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाने लगा. एवरीवन, प्राइस नीचे तो आया लेकिन सपोर्ट लेके ऊपर गया. इसको हम कहते हैं रीटेस्ट.
एवरीवन, इसको हम कहते हैं रीटेस्ट। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग, चलो पहले वेट। गाइस ये देखो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक आपको यहाँ पे देखने मिलेगा अभी। रिटेस्ट का एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम पे आने दो मुझे। हाँ, एक सेकेंड ना गाइस। इसमें नहीं बन रहा है वो फिलहाल, तो पूरा साइडवेज ही है ये स्टॉक गाइस। दूसरे स्टॉक में देखते हैं हम लोग एक बार। रुक जाओ, हम लोग देखते हैं यहाँ पे जियो फाइनेंस में देखते हैं, चलो हम लोग जियो फाइनेंस में देखते हैं। ठीक है, रुक जाओ। एवरीवन ये देखो यहाँ पे, ये थियरी देखो आप लोग। एवरीवन, पहले क्या हुआ यहाँ पे देखो। एवरीवन सी दिस, पहले क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पे देखो बार बार सपोर्ट पे है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर गया। ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे किसी को चांस ही नहीं मिला एंट्री करने का। एवरीवन ये देखो, ये भी रेजिस्टेंस था यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, बट जब प्राइस यहां से ऊपर गया, देर वॉज नो चांस फॉर एंट्री, देर वॉज नो चांस फॉर एंट्री। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तो देखो ये अपना सेकंड डायग्राम के हिसाब से या तो आप एंट्री यहां पे बना लो प्रॉपर ग्रीन कैंडल्स के साथ में, या तो फिर आप एंट्री कहां पे बनाओगे थर्ड डायग्राम के हिसाब से। कैसे, प्राइस को ऊपर जाने दो, प्राइस नीचे आएगा, फिर से देखो प्राइस आपका ये ऊपर गया, प्राइस आपका नीचे आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद में फिर आपका प्राइस ऊपर गया। एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मतलब पहले जो आपका रेजिस्टेंस था वो अब एज अ सपोर्ट काम कर रहा है आपके लिए। अब आपका रेजिस्टेंस कहां पे है, अब आपका रेजिस्टेंस यहां पे है, ये एरिया पे है। जितनी बार स्टॉक जब नया हाई बनाएगा, देयर विल बी अ रेजिस्टेंस। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश Janani. Based on diagram, okay, Janani, look at this. Based on the diagram, here is my support, price went up. In first diagram, what I showed, let the price come on support, let the price come on support. Here price took support, you made your entry over here and the price went up. This is the first theory. You made your entry over here. As per third diagram, what happened? Price gave directly breakout, price went up. Now, as I said yesterday, you should never enter on the green candle when you are at top. Wait for the price to come down. Price नीचे आया यहाँ पे, प्राइस ने देखो फिर से प्रॉपर सा अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, सपोर्ट पे बनाया, मतलब जो पहले द प्रीवियस दैट वाज रेजिस्टेंस and now that resistance is your support, and now that resistance is your support, so you can take your entry over here and then you can enjoy your profits. Is it clear to all of you now, everyone? हाँ guys, ये clear है सबको अभी? All of you, I explained same thing English and I explained same thing in Hindi also with proper diagram. What I'm gonna do is, wait. Everyone, is it now okay to all of you? ये देख लो एक बार सब लोग. Just look at here, Janani. Here I have proper diagram on top, and here I have proper example also.
Everyone, kindly please reply me in the chat box quickly. Guys, can I get your reply? It is my request, please. I hope now this part is very clear to all of you, right? One second, guys. Let me crop this photo. Oops. Okay, done. Chalo. So now let's understand, guys, what is swing and what is trend. Okay, now let's understand what is swing and what is trend. So basically, guys, we have three types of trend. We have three types of trend. One is your uptrend, one is your downtrend, and one is your sideways. One is your sideways. Everyone, you got my point? We have three trends. So now why I'm asking you to look chart in bigger time frame first, because bigger time frame will show you trend. Guys, मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको देखने क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखता है ट्रेंड. Now understand, you are on daily time frame. Okay, this is your chart. Okay, you are on 1 day time frame. Okay, and now your chart is like this. Is it uptrend, downtrend, or sideways? Everyone, is it uptrend, downtrend, or sideways? Can you please reply me all of you? Uptrend, right? Okay, perfect. Now look at a similar situation. Now the price is going down like this. Is it uptrend, downtrend, or what now? Everyone, ये uptrend है, downtrend है, क्या है? And if the price is like this, then if the price is like this, then what is it? Everyone, wrong. No, it is sideways, guys. See, ये मेरा sideways है. Because price is not going up or neither price is going down. ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है. इसको मैं कहूंगा uptrend. इसको मैं कहूंगा डाउन ट्रेंड. दिस इज माय डाउन ट्रेंड. यू गॉट माय पॉइंट नाउ ऑल ऑफ यू. अभिषेक, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है. ओके, डोंट वरी, मैं आपके क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर रहा हूं मैं. हाँ, एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? गाइस एक सेकेंड. सॉरी हाँ गाइस. तो भी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो. जस्ट लुक एट हियर नाउ विद अ प्रॉपर एग्जांपल. whenever you are doing swing trading, guys, whenever you are doing swing trading na, always try to figure out stocks which are in uptrend. Everyone, अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो मुझे ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जो अप ट्रेंड में है. ठीक है? इफ आई एम डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, एक सेकेंड है गाइस. ओके, सो गाइस, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं यहां पे, ठीक है,
अगर मैं अभी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, इसमें भी खाता हूं, तो मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो अप ट्रेंड में है. द स्टॉक्स शुड बी इन अप ट्रेंड ऑन डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे. अभी ये मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है एवरीवन? हाउ कम आई कम टू नो दैट स्टॉक्स आर इन अप ट्रेंड? हाउ विल आई रिकॉग्नाइज देम? ये सवाल आ रहा है अभी आप सबको, ऑल ऑफ यू. डू यू गाइस हैव दिस क्वेश्चन? देयर आर 7,000 प्लस स्टॉक्स इन द मार्केट. हाउ एम आई गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हिच स्टॉक्स आर इन अप ट्रेंड एवरीवन? सबको ये क्वेश्चन है? प्लीज टाइप वन क्विकली इन द चैट बॉक्स. हेलो ऑल ऑफ यू. परफेक्ट. अभी यहां पे देखो गाइस, सिंपल सा काम करना है. आ जाओ गूगल पे. ठीक है, गूगल पे आने के बाद आप खाली ऐसे लिखो, अप ट्रेंड स्टॉक स्क्रीनर. बस इतना लिख दो खाली, अप ट्रेंड स्टॉक स्क्रीनर. ठीक है, अभी बहुत सारे ऑप्शन है गाइस आपके पास यहाँ पे. देयर आर मेनी ऑप्शंस. जस्ट टैप एनी वन लिंक, कोई भी लिंक पे आप टैप कर दो यहाँ पे. ठीक है, अभी यहाँ पे कितने स्टॉक्स हैं आपके पास एवरीवन? हाउ मेनी स्टॉक्स वी हैव? Total 45 stocks we have in this list right now. Everyone, how many stocks we have? Only 45 stocks. Okay. आप इसमें से एनालिसिस करो ना स्टॉक का, इन्हीं में करो ना एनालिसिस. अभी आप जैसे अभी मुझे दिख रहा है गाइस, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात. जो स्टॉक ज्यादा भागा है, द स्टॉक विच हैज गिवन अ गुड रिटर्न, अवॉइड दैट स्टॉक. द stocks which have already given return, avoid that stocks. Huh? Understand? What we need to do is we need to select stocks which are given like at least 5%, 6%. तो एक काम करते हैं, मैं यहां पे ले लेता हूं टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड. ओके, टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड. अभी मुझे एक बात बताओ गाइस यहां पे, तो सर आप पैसे वाले क्यों नहीं बने अभी तक? संजीव बताइए मुझे. आप कह रहे हो ना पैसे वाले बन जाते. एवरीवन, ठीक है. नाउ लुक एट द स्टॉक स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टॉक गाइस. ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है? ऑल ऑफ यू बताइए मुझे, व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टॉक राइट नाउ? इज इट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड? गाइस अप ट्रेंड में है, राइट? चलो अभी एज पर फर्स्ट डायग्राम अगर मैं देखूं, ठीक है, स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है. सॉरी, सेकंड डायग्राम अगर मैं देखूं, ये देखो गाइस, ये वाला मेरा सेकंड डायग्राम है, ये वाला. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? स्टॉक मेरा ऑलरेडी ऊपर जा चुका. थर्ड डायग्राम को देखो आप लोग, स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है. मैं क्या बोल रहा हूं पता है? इसको आप मार्क कर लो यहां पे. मार्क द जोन जहां पे प्राइस ने पहले बहुत बार रेजिस्ट किया ऊपर जाने के लिए. ये देखो, ये वो एरिया दिख रहा है मुझे यहाँ पे. दिस इज द एरिया वेर प्राइस वॉज स्ट्रगलिंग टू गो अप. दिख रहा है सबको, ऑल ऑफ यू? प्राइस पहले बहुत स्ट्रगल कर रहा था वहां पे ऊपर जाने के लिए. सिंपल सा लॉजिक है गाइस. ये वो एरिया है, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो. ऐड दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट नाउ. नाउ एज पर द थर्ड डायग्राम, एज पर द थर्ड डायग्राम, स्टॉक को नीचे आने दो. अभी स्टॉक को नीचे आने दो. स्टॉक को यहां पे ऐसे नीचे आने दो और यहां पे कुछ तो बनाने दो पॉजिटिव सा. समझ में आ रहा है? मतलब पहले भी देखो यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, इस बार भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा. तो आपका एंट्री आप यहां पे प्लान करोगे. सर स्टॉप लॉस, लॉस कितना हो सकता है मुझे यहाँ पे? ये जो नीचे वाला एरिया है ना, जहां पे देखो स्टॉक बार बार रुक रहा था. एवरीवन, स्टॉक बार बार ट्राई कर रहा था नीचे जाने का, बट नीचे जा ही नहीं पाया. ऑल ऑफ यू, स्टॉक नीचे जा ही नहीं पाया. तो ये आपका स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो. एवरीवन देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, इन स्टॉक मार्केट 100% कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? ये चार्ट आपका प्लेग्राउंड है, योर स्ट्रैटेजी इज योर बैट, योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट्स आर योर अदर टूल्स which will help you to manage your game in a proper manner. Understand? All of you,
ये वाला पार्ट सबको समझा कि नहीं समझा मैंने जो किया मैंने अभी? ऑल ऑफ यू, रिकॉर्डिंग में आपको वेबसाइट भी दिखेगा, वेबसाइट का नाम है चार्टिंग। अंडरस्टैंड गाइस? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे स्टॉक भागेंगे गाइस, बट 7,000 स्टॉक्स पे आपको एनालिसिस करने कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं खाली 45 स्टॉक पे एनालिसिस करो। डिड आई से कि दिस स्टॉक विल गो अप? नो। व्हाट आई एम सेइंग इज you need to do your technical analysis on that stock first. Once you do your technical analysis, find the proper supply and demand zone, then only you need to plan your ट्रेनिंग पोजीशन। ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया क्या ये बात? मुझे बताओ। अभी ये तो मैंने फिर भी डेली टाइम फ्रेम पे रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे बनाने के बाद में आपको इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आना है। चलो इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं मैं अभी। एवरीवन, नाउ हियर आई एम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। सी, एकदम प्रॉपर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सारी चीजें अभी? हाँ, हेलो, हाँ एवरीवन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्टॉक अगर अभी यहाँ पे नीचे आएगा प्रॉपर ऑलमोस्ट नियर बाय 580 के पास, तो तब जाके हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है? ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड जॉब फॉर यू सर, ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सब लोग अपने स्ट्रैटेजीज को प्लान करो गाइस। कोई कुछ भी आके बोले ना मत सुनो, मैं अभी भी बोल रहा हूं। अगर मेहुल भी बोल रहा है ना कि काम करेगा, भाई क्यों काम करेगा? मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों काम करेगा। अगर मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं तो गाइज, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे वॉल्यूम्स। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर दूं ना गाइज, अगर आप वॉल्यूम डाइवर्जन सीखोगे ना, समझो मेरी बात, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं ये चीज मैं अभी आपको। ये एडवांस का पार्ट है जो हम नेक्स्ट संडे को सीखने वाले हैं अभी। वॉल्यूम डाइवर्जन में कैसा होता है? इफ प्राइस इज गोइंग अप and volumes are also high, everyone, if price is going up and volumes are also high, that means buyers are interested to take the price up of that asset. buyers को वो asset का प्राइस ऊपर लेके जाना है, वहां पे स्मार्ट मनी आ रहा है। वहीं पे प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है। दैट मीन्स जो प्राइस पॉइंट अभी चल रहा है, बायर्स को वहां पे बाइंग करने का इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब बहुत कम वॉल्यूम्स में आपको बाइंग मिलेंगी। प्राइस आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बट बहुत कम वॉल्यूम आपको दिखेगा। वही जब प्राइस नीचे आ रहा है, वही जब प्राइस पूरा नीचे आ रहा है और एकदम से सेलिंग वॉल्यूम भी आ रहा है, रेड कलर का वॉल्यूम नीचे देखो, रेड ग्रीन वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं। इफ द सेलिंग वॉल्यूम इज मोर, लिक्विडिटी, बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे आदित्य। डे 1 में मैंने ये चीज समझाया था, बाइंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट पूरा कैसे काम होता है। ऑल ऑफ यू, डे 1 में हमने देखा था कि नहीं देखा था ये चीज? एवरीवन, याद है मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे पूरा एक वॉल्यूम जनरेट होता है, किसी को बाय करना है किसी को सेल करना है, ऑर्डर मैच होता है तब जाके एक सिंगल वॉल्यूम बनता है। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज नाउ ओवर हियर, if price is coming down and if there's a heavy volume in selling, that means price will definitely come down. Whenever there is a selling but volume is very less, volume is very less, that means buy sellers are not interested at this price point to sell that asset. Let's figure out this proper example guys। एक proper example के साथ में देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अभी आप ये रेड वाली कैंडल, आप ये ग्रीन वाली कैंडल देखो गाइस, एवरीवन, एक सेकेंड ना, ऑल ऑफ यू लुक एट दिस ग्रीन कैंडल। आप देखो ये प्राइस जहां पे ओपन हुआ है ना वहीं पे क्लोज हुआ है। एवरीवन सी दिस, ये प्राइस, सुनो मेरी बात यहाँ पे एवरीवन, ये प्राइस जहां पे ओपन हुआ ना 641.80 पे प्राइस ओपन हुआ है और 642.30 पे क्लोज हुआ है। एवरीवन लुक एट दिस, मैं ऊपर आप देखो हाई सेल, ओपन हाई दिख रहा है आपको, ओपन हाई लो क्लोज। एंड नाउ लुक एट द वॉल्यूम। एवरीवन नीचे आप इसका वॉल्यूम देखो कितना है, उस दिन बाइंग हुआ है। एवरीवन आप एक चीज नोटिस करो, जब सेलिंग हो रहा है तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है। whenever there is a selling, the volume is very less. Now look at the red candle guys, similarly आप रेड कैंडल को देखो, यहाँ पे कैंडल का वॉल्यूम बहुत, मतलब कैंडल का प्राइस नीचे तो आया है बट लुक एट द वॉल्यूम। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये वॉल्यूम डाइवर्जन का जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं? ऑल ऑफ यू, हाँ एवरीवन,
ये सबको क्लियर हो रहा है क्या अभी? मुझे एक बताओ जरा चैट बॉक्स में। आप एक बार ग्रीन कैंडल का देखो, वॉल्यूम कितना ज्यादा है, ठीक है, जो प्राइस को नीचे आने से रोक रहा है। आप देखो सेलर्स ने बहुत ट्राई किया प्राइस को नीचे लेके आने का, बट प्राइस डिडंट गो डाउन। उसी के साइड पे आप लेफ्ट कॉर्नर में देखो, रेड कैंडल है आपका, कैंडल बॉडी वाज वेरी बिग बट वॉल्यूम वाज वेरी लेस, सेलिंग वॉल्यूम। ठीक है हिमांशु सर, ये भी खाली गुड टू नो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है अभी आप लोगों को, ये नेक्स्ट संडे हम सीखने वाले हैं, डोंट वरी। मैंने क्यों बताया आपको अभी, ताकि एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों बात कर रहा हूं यहां पे। एवरीवन, आई होप कि सबको ये वाला चीज प्रॉपरली समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, अभी एक चीज आप और नोटिस करो, अभी तक तो हमने सिर्फ ट्रेंड को देखा है। एवरीवन, अभी तक तो हमने सिर्फ ट्रेंड को देखा है कि प्राइस मेरा ऐसे ऊपर जा रहा है, बट ट्रेंड का जो बीच का एरिया है ना गाइस, ट्रेंड का बीच का एरिया, उसको हम कहते हैं स्विंग। एवरीवन, ट्रेंड का जो बीच का एरिया है उसको हम कहते हैं स्विंग। देखो ये वाले एरिया को हम कहते हैं स्विंग। अब यार छोटे टाइम फ्रेम पे इसको आप देखोगे ना, उसको हम कहेंगे स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। मतलब मैंने क्या बोला कि स्टॉक मेरा डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, नंबर वन कंडीशन, डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में होना चाहिए। और छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरा जो भी एसेट है वो सपोर्ट पे होना चाहिए। वो कहां पे होना चाहिए? सपोर्ट पे होना चाहिए। सपोर्ट पे कैसे होना चाहिए? देखो जो मैंने डायग्राम्स आपको ऊपर बना के दिए, या तो प्राइस यहां से ऊपर गया, यहां से अभी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, एक तो ये डायग्राम ऐसे होना चाहिए, या तो आपका ये डायग्राम ऐसे रहेगा, यहां से प्राइस ऐसे ऊपर चला गया, यहां से ऊपर जाने दो उसको, जैसे अभी हमने टीडी पावर में देखा, और उसको नीचे आने दो, यहाँ पे वेट करो, और यहाँ पे जब कोई सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तब जाके एंट्री प्लान करना है। एवरीवन, सबको समझ में आ गया ना अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, मैं सबको एक बार माइक का एक्सेस दे रहा हूँ गाइस, प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दो जल्दी से, ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पीपल, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, मुझे बताइए, डिड यू गाइस अंडरस्टैंड द strategy that we discussed today properly? Everyone? Yes, Yes. yes, sir. I Yes, sir. Yes. understand. Everyone? Everyone, Yes, everyone, sir. guys. Yes, I sir. Yes, need sir. proper participation, Yes, please. Look, again, yes, I'm Yes, sir. not sir. saying, again, Very, I'm not very saying clear and correct. short videos. Sorry, sir. राकेश जी, आप कुछ बोल रहे थे? Please, sir, repeat again. What you want me to repeat, sir? What you want me to repeat? This one actually, डे 1 डे फ्रेम जो स्ट्रक्चर है ना, उसको और एक बार रिपीट कर दीजिए। You will do your analysis in 1 day structure. Yes, yes. Okay, and you will plan all your like, see, this is your 1 day structure. Your 1 day structure will look like this on chart. Okay, your 1 day structure will look like this on chart, but while Right. planning your positions on chart, your structure will look like this of chart. You got my point? Same thing we did over here. Same thing we did over here in TD Power, sir. Just see, I am on daily time frame right now. What's the structure on daily time frame? It is the same structure that I shown you, sir. Absolutely. ये same structure मैंने आपको बताया, right? See this, price is going up. You got my point? This is a daily structure. Okay. Now, what I am doing is, first I will apply my analysis on daily time frame. So right now the price is up. I directly cannot jump in because I don't know na, on what moment price will start coming down. Do I have any evidence over here that price will definitely go up? I don't have any evidence. No. I have one evidence that I have seen that price was taking multiple resistance at this particular area, and after that price took support and price went up. So what I will do is, I will wait for the same theory to repeat again. I am just waiting for my price action to come down over here again. Yes. Okay, and now here what I am doing is, I am shifting my same analysis to 1 hour time frame. Here I am on 1 hour time frame now. Here I am on 1 hour time frame now. Now here if you see,
let the price come at this particular area. Okay, thank you, sir. Okay, let the price come this particular. Now here, there is one more option to take entry. There is one more option to take entry. What you can do is, if you see this particular area, this is not safe, but still you can plan over here. Look, in 1 hour time frame, if you trade in middle of chart, there's a very high chance that you may get fake breakout or fake support. Why I am asking you to wait till here? Because this is a foolproof support. We have been checking this on daily time frame, right? Okay, now Abhishek has a question and Sadani has a question, that for how many days we need to check? How many days we need to check? Again, that is a subjective question, guys. You can come to the daily time frame, and if you ask me for swing trading, how many days I need to check, I say check it maximum 15 to 20 days, not more than that. Check 15 to 20 days, not more than that. But still, if you want multiple confirmation, you can go back and you can check it out. जितना confirmation लोगे उतना अच्छा आपके लिए. अभी if you see over here, just look at this area right now. I'm drawing right now. I am going on weekly time frame, guys. I am on weekly time frame right now. On what time frame I am right now? Weekly time frame. Okay. Look, guys, I'm changing the theory now. Okay. I need a multiple confirmation. I need proper foolproof support. So what I am doing now, I am on weekly time frame. And on weekly time frame, I am getting data since May. From May, I am looking data now. Look here. What I am doing now over here, I'm just drawing my lines over here properly, just to make sure that I should get a proper resistance point and support area. Okay. Now see this. These are my proper points which I have marked on weekly time frame. Okay. Now from weekly I am coming on daily. Everyone, did I get the same mark? All of you? I got the same area. There is no compulsion that you need to check for 10 days. You need to wait for 15 days. I am looking data since June right now. Everyone, what I did, first I went on weekly, then I came on daily. Now I will go on. After this, what I will do, I will come on 1 hour. Now, as I said, see, now proper area I am getting between 555 and 565. There's a proper area for me wherein I can plan my entry. And where is my stop loss going to be? My stop loss is going to be over here at this particular point. Everyone, at this particular point. Debarata sir, is it clear to you now? Yes. Yes, sir. Abhishek, I hope आपको आंसर मिल गया आपका. Sadani, I hope you got the answer. Everyone? Confusion तो नहीं लग रहा है ना, guys? Is it confusing you more? Huh? But No. a very confusing matter. Sorry, sir. Very confusing matter. Actually, theoretically, so many simple, but technically, it is more tough, I think. That's the reason I am repeating same concept, or like I have repeated same thing now 3 to 4 times, sir. Absolutely, that is why. Actually, No, in a practical background, it is very difficult, I think, basically. No, it is not difficult, sir. It is not difficult. Look, I'll show you something. Wait. Here. 1 second. Just look at this area. Same thing already I am doing, sir. I am only teaching. Guys, देखो मैं वही चीज आप लोगों को सिखा रहा हूँ. ठीक है? जो चीज मैं खुद कर रहा हूँ. अभी यहाँ पे देखो. हाँ? मैंने क्या बोला? Price is now retesting. Everyone, मैंने क्या बोला? Price retest हो रहा है अभी. Everyone, see this. ये इमेज देखो आप लोग यहाँ पे. सेम रिटेस्ट वाला है कि नहीं जो मैंने बताया आप लोग को? द थर्ड डायग्राम which I showed you guys. Everyone, प्राइस ऑलरेडी पहले ऊपर चला गया. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने प्राइस को नीचे आने दिया. Everyone, बिल्कुल. I allowed price to come down. I didn't plan any position. And after that, what magic we saw? See, this was the magic later on. Price Actually, again went up. Sir, I have one questions.
Actually, on what factor this swing trading is depends on? So swing trading is something like wherein you plan your positions for maximum 1 week to 15 days. Okay. And after that, you take exit from that particular asset. How to select stock? People know. Sorry, How to select stock for swing trading? संजीव सर, अभी मैंने वही तो बताया सर, मैंने अभी कैसे करना है एनालिसिस. एवरीवन गाइस, ये सबको समझ में आ गया अभी प्रॉपर. एंड वन मोर थिंग गाइस, देखो स्टॉक सिलेक्शन, गाइस देखो इसके अलावा सेक्टर एनालिसिस करके भी हम काम कर सकते हैं. सेक्टर एनालिसिस भी कल सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है. बट फॉर नाउ, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर स्विंग, ये जो मैंने आप लोग को बताया ना, जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च इट फॉर दिस. ये एक स्ट्रैटेजी आप ट्राई करो गाइस. पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, आप लोग इसको, चीजें काम करेंगी आपके लिए. आई एम टेलिंग यू दैट बिकॉज मैं खुद वही चीजें कर रहा हूँ गाइस. मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ. आई कैन शो यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. मैं आप लोग को एन Sir, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ. यस. how often do we have to wait for this chart pattern to reoccur? I'll tell you sir one thing. Normally, Monday and Tuesday are not going to be your entry points. Trust me, sir. Monday, Tuesday कभी भी आपका entry point नहीं रहेगा. आपका trade कब बनेगा पता है? Maximum time Wednesday या Thursday को बनेगा. Maximum time, sir. Because आप confirmation के लिए wait करोगे ना सर. आप डायरेक्टली तो मार्केट में जंप नहीं करोगे. आपने देखा सैटरडे को एनालिसिस किया आपने, क्या दिख रहा है मुझे? प्राइस ऊपर जा रहा है. मंडे को अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिला तो आप ट्यूसडे, तो इसके लिए मैं बोलता हूं मंडे ट्यूसडे कभी भी नहीं रहेगा आपका एंट्री वाला पार्ट एरिया. ऑलवेज वेनेसडे, मैक्सिमम वेनेसडे या थर्सडे को आपको चांस मिलेगा आपके सेटअप्स को प्लान करने के लिए. 70% टाइम. क्लियर है सर अभी आपको? Yes, sir. एवरीवन देखो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, ये वाला रिकॉर्डिंग देखना आप लोग पहले प्लीज. 4 से 5 बार ये रिकॉर्डिंग देखो. फास्ट फॉरवर्ड करके देखो गाइस, बहुत ही छोटा सा रिकॉर्डिंग है. एंड ट्रस्ट मी, ये खाली टेक्निकल चीजें आप प्रॉपरली सीख गए ना, ट्रस्ट मी गाइस, तो आपको किसी की Absolutely right. जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं तो बोलता हूं आपको मेहुल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ट्रस्ट मी. और मेरे पास एविडेंस है कि मैं वही चीजें करके आगे बढ़ रहा हूं. दुनिया कुछ भी कर रही है मुझे नहीं पता गाइस. मुझे अपने स्ट्रैटेजी पे भरोसा है. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. बाकी लोग तो ऑस्किलेटर्स यूज करते हैं, लोग आरएसआई भी यूज करते हैं, लोग एमएससीडी भी यूज करते हैं, लोग मूविंग एवरेजेस भी यूज करते हैं. चीजों को कलरफुल करके कोई मतलब नहीं है. मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे आप लोग, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा अलग से चार्ट पे लगा दूं आपके लिए अभी, सीरियस, ये क्या कर रहा है अभी? ये आपके लिए और क्वेश्चंस बढ़ रहा है, राइट? ये देखो मैंने यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा दिया, मैंने यहाँ पे एमएससीडी भी लगा दिया. एवरीवन अभी एक मुझे बात बताओ, ये नीचे भी सेम दिख रहा है, ऊपर भी मुझे सेम दिख रहा है, क्या ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा है? आरएसआई बताओ जरा मुझे अभी. मैं सिंपल सिद्धांत लेके चलता हूं कि जितना हो सके उतना क्लीन चार्ट के ऊपर चीजों को ढूंढो और ट्रेड करो. अभी यहाँ पे देखो मैं एमएससीडी लगा रहा हूं. एंड पर्सनली गाइस ये सारी चीजें मैं खुद नहीं यूज करता हूं. एवरीवन आई होप कि आप लोगों को ये जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूं प्रॉपर समझ में आ रहा है, राइट? सबको, ऑल ऑफ यू. ये देखो ऑल ऑफ यू गाइस, अभी ये देखो यहाँ पे एमएससीडी बन गया. ये मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है अभी आप लोग को? इसमें कुछ नहीं है गाइस, इसमें कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन. मैं कभी आज तक कभी भी मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है जो मुझे ट्रेंड और ये सब ढूंढने के लिए पड़े. क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस, ऑल ऑफ यू? ठीक है, आज का सेशन एंड करेगा गाइस. अभी यहाँ पे हम लोग, कल भी सेशन है आप लोगों का. एवरीवन
कल भी सेशन है. ओके सर. एंड गाइस सुनो मेरी बात, आई एम जस्ट शेयरिंग वन थिंग, वेट.